Welcome to day 2 of the Enterprise of Translation. The star of today's session is Padma Shri Haldhar Nag, the pride of Odisha, just introduced to you by none other than Gulzar Saab in Virtual Bharat, a Bharat Bala production. Haldhar will be presented to us by his translator Surendra Nath, who will give us a peek into his relationship with the poet. Dr. Gyani Devasis will briefly introduce Haldhar and Surendra Nath before they get into a conversation. Let me inform you all that Padma Shri Haldhar Nag has been desperately trying to join us from his village in remote Bargad. We have been trying and are still trying to bring Haldhar ji online, but unfortunately we are being disconnected on and off. Please bear with us. This webcast is dedicated to Shri Haldhar Nag. Before we begin, let me invite Honorable Vice Chancellor Professor Ishan Patro to deliver his remarks. Namaskar. I'm so happy to be here on the second day of this series being organized by our Center for Translation and Digital Humanities, a center which has been initiated very recently, and this is our first effort to go air. Yesterday we had one session, and today we are into the second one, dedicated to a great man, Haldarji. One can very well imagine the magnanimity of a person who is being all the time introduced by the laurels like Guljarji. The topic that has been chosen today, is it necessary for the translator to know the author? I was all the time thinking, should it be or should it not be? But after seeing this small clip on Haldarji, it's very clear. You have to feel the man, you have to be with the man, you have to understand the man before you try to understand and translate the man and his creation. I feel so humbled. It's such a wonderful workplace he has, so neat and clean. Doesn't have a very beautiful chair and table, but it speaks. This is the place where one can create the creation that has come from his pen and on the paper. Look at his handwriting, the way he writes, the way he holds the pen, the simplicity and the magnanimity in the man himself. I think unless you know the man, unless you understand him, you cannot understand all his creation to its fullest or to justify to its fullest. That's what I just felt after looking, having a vision of the clip that was presented here. I'm very thankful to my team here who has done a wonderful job of this series. And I congratulate them, and I congratulate all the speakers in this series who are the real stars of literature today. I always think that anything written in one language should also be translated into a common language, which takes this understanding, this knowledge, this wisdom to more and more people. Why should we keep any wisdom confined to one language, to one chamber, to one state, to one village? We can take it and make it free to be available to everyone on this earth to understand the real wisdom that is there. How many people would come to Haldar's village to see what he has written? But once you translate, the whole world will know that this man, with a barefoot, dancing with people who may not be even having 3 meals a day, but speaking so high of the entire earth, the entire humanity, or speaking things which are much above a common man's understanding. This is interesting. And I'm so very much
indebted to my team for putting things together like this. I wish you all the best. Please continue with this session, and I'm there to listen. Thank you very much to all the participants who are listening to this also. All are welcome. Thank you. नमस्कार। मैं इस सत्र की शुरुआत एक भारतीय भाषा इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारी उद्देश्य यही था कि हम लोग आप लोगों से यही बताने के लिए जुड़े हुए रहे हैं कि एक भारतीय भाषा की कितनी ताकत होती है, कितनी जिम्मेदारी भी होती है कि वो आप तक पहुँच सके और आपको आपके सामने ला सके। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि भारत को समझे मेरे हिस्से ये हिंदी से जुड़ा ये भी जरूरी प्रादेशिक भुगतान भारत की समृद्धि बन सकती है। जब हम हलदर जी की बात करते हैं, वही महल और धरोहर की वही महक के सामने आती है। और जब हम सुरेंद्र जी को यहाँ बुलाते हैं, उन्हीं के जरिए हलदर जी को और व्याप्ति और गगन के सामने उपस्थापन करना चाहते हैं। और यही चाहते हैं कि हलदर जी हमारे आकाश से और दूर तक जाएं और पहुंच उनका आगे हो। तो हलधर जी एक प्रादेशिक प्रांत की कवि हैं, ये समझकर हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हलधर जी हमारे धरोहर की महक हैं और ये भी उनका एक ताकत है, उनकी एक भाषा की ताकत है, जिसकी वजह से वो शायद दूसरों को पहुंचा रहे हैं दुनिया के सामने। तो फिर देखिए, सुरेंद्र जी हमसे जुड़े हुए हैं, हम लोग अभी जुड़ने की कोशिश में है हलधर जी के साथ, लेकिन कनेक्शन की वजह से, कोई दिक्कत की वजह से वो शायद नहीं हो पा रहा है। सुरेंद्र जी से हमारी आज की जो आलोचना की शुरुआत होगी, यही आलोचना ही हमारी प्रस्तुति की शुरुआत जो होगी कि इज इट नेसेसरी फॉर द ट्रांसलेटर टू नो द ऑथर, क्या जरूरी है एक अनुवादक को जानना एक साहित्यिक, पहले जब वो अनुवाद करना शुरू करता है किसी साहित्य की, वो अनुवादक की भूमिका क्या होती है। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सुरेंद्र जी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। सुरेंद्र जी पहले तो नेवी में थे, उसके बाद वो रणविजय क्लास नाम के एक अखबार से साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। वहीं से उनकी दैनिक की जीवन सांबादिकता से जुड़ी हुई है। उसके बाद वो कर्ण को लेकर दो सीक्वल भी लिख चुके हैं, अल्टर ईगो ऑफ कर्ण एंड कवच ऑफ कर्ण। लेकिन कथाकार की उनकी जो जिंदगी थी वो शायद कहीं छिप गई और सामने आ गई। और यही जीवन है, जिंदगी है अनुवादक की, जब वो किसी दूसरे साहित्यकारों को अपने धरोहर से ऊपर एक दूसरी धरोहर में पहुंचाना चाहता है। और सुरेंद्र जी इसी काम में आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुरेंद्र जी, आपको स्वागत करते हैं रेवेन्शा के इस लिटरेरी वेबिनार में, और आपसे जानना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपने जब शुरुआत की है तो इस जिंदगी आपकी अनुवादक वाली जिंदगी, पहले तो आप सांबादिकता से जुड़े हुए थे, उसके बाद कथाकारिता आपका कला थी, और अभी तो आपके जिंदगी में एक दूसरी दिशा भी आ गई, वो भी ट्रांसलेशन। तो फिर आप हमें ये बताएं, और ये सत्र की शुरुआत आपसे ऐसे करना चाहता हूँ कि ये अनुवादक वाली जिंदगी आपकी कैसी आई, और आपको हलधर नाग ही क्यों आए सामने आपके, क्यों, ऐसा क्या देखा उनमें जो आप हलधर नाग को ही चुने? बहुत अच्छा सवाल ज्ञानी जी। पहले तो सब श्रोताओं को नमस्कार और मेरा धन्यवाद
रेवेंशा यूनिवर्सिटी को, DH ट्रैक को और फिल्म डिवीजन जिन्होंने मिलके ये वेबिनार तैयार किया है। अब आपने मेरे बारे में तो बहुत कुछ कह दिया है कि अभी मैंने ट्रांसलेशन का काम शुरू किया है, कैसे किया है और अपनी जिंदगी में कितने बदलाव आए हैं। मैं पहले तो ये कह दूं कि मैं अभी भी कथाकार हूं, अभी भी पत्रकार हूं और अभी भी ट्रांसलेटर हूं। और जब जहां रुचि जिस दिशा में रुचि चलती है उस दिशा में मैं अपना कदम बढ़ा लेता हूं। अब हल्धर नाग से एक मेरा जैसा नाता जुड़ गया। 2016 में उन्हें नवाजिश किया गया पद्मश्री सम्मान के साथ। उस टाइम पर मैं उस वक्त पर टीवी देख रहा था और जब मैंने इस शख्स को देखा जो धोती और कुर्ता, धोती और बनियान पहनकर नंगे पांव प्रेसिडेंट के सामने आ गए बिना झिझक के और बिना किसी बिना कॉन्फिडेंस ना होते हुए, पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते के हुए आराम से ये पद ग्रहण किया। तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये आदमी है कौन और इतना अलग सबसे है क्यों। और फिर वो हमारे स्टेट से उड़ीसा के ही थे, उनके बारे में मेरे जिज्ञासा शुरू हुआ। ये क्यूरियोसिटी स्टार्टेड। आई थिंक अगर ये ना हो, कोई आपत्ति ना हो, तो मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के कह देता हूँ। My curiosity increased to know this man. Soon afterwards, I was watching the TV when he came in an interview. There I got to hear some of his poems. I could really feel they were very deep in meaning, in emotions, in the local flavor of Odisha and Sambalpur. And I knew the language Sambalpuri. Seeing on the TV, it occurred to me that the interviewer or even the audience, the captive audience inside the hall, were really not understanding what he was saying. He was speaking at a much deeper level. Though people must have understood, but they would have understood quite superficially. Firstly, there was a language barrier, a language of Sambalpuri Kosili, which is not so well known. It occurred to me also that if he goes on writing in this much language, this Sambalpuri Kosili language, his reputation will remain localized within Sambalpur or at best within Odisha. For all the knowledge he has, for all the teachings he has to give us through his poems, it has to be translated into a well-known language. And yes, English is a very well-known language, which I thought I will give it a try. With this in mind, I went to his village, yes, one day and met him. Firstly, I was very surprised at the kind of living he does. Very, very modest living in a two-room house. But what also took me was that he was not at all concerned. Maybe I was concerned about his living. He was not concerned about his standards of living. His concerns were at a much higher level. I asked him, "May I translate your poems?" And very readily he agreed. Before I thought I will have to prove my worthiness. I'll have to prove my worth. I'll have to show him some of my works, and only then he will agree. Nothing was needed. He straight away said, "Please go ahead, you can translate." And in fact, he narrated some of his poems to me there. I was very impressed with those poems. I came back very satisfied, and I made a tour of his village with him. He showed me all around, and I came back. I was so impressed. The day I came back, on that very same day, I started the work, and I found that it is flowing quite well. I'm feeling very happy about translating. That was Kavyanjali, a collection of poems that about 30 poems in the first volume, which in the same year we were able to publish. You can see on screen Kavyanjali, which is
poem of about 30, a collection of about 30 poems, 2 very long poems. And that's how I came across Haldharji. And it took me quite some time to get very close to him. If I have to come to the theme of this webinar today, does a translator need to know the author or the poet in this case? I think know has a lot of this word K-N-O-W, know has a lot of connotations. Many translators are translating authors who are no more. So this know does not necessarily mean that we have to, be in personal touch with him and he should know you and I should know him, or we recognize each other. It has a much deeper meaning. To know is to understand his background, his mind, his thinking, his emotions, his surroundings, and also, if possible, to merge with it so that you can get the feeling that he has. Only then a translation will come out very well. It was very, I was very lucky. I was able to do that, and he accepted me into his life. I have started calling him Dada, which is, brother. And so I think I have been very lucky. He has not only given me the opportunity, he has got me into his life, and we know each other now more closely than just outwardly knowing. I think our chemistry matches. ये बड़ी बात है कि आप बता रहे थे कैसे आप उनके साथ मिले जुले और आपकी जो अनुवादक की जीवन उसकी सिलसिला की शुरुआत हो गई। वही जानना चाहते थे हम। आपने 3 वॉल्यूम में काव्यांजलि अनुवाद किए हैं हलधर जी के 3 संकलन की, और ये भी देखिए कि आपके अंदर जो साहित्यकार था, जो कथाकार था मुख्यतः, वो भी कहीं था, अभी तक है, था नहीं है अभी तक, जैसे आप बता रहे थे। तो ये जो साहित्यिक की जीवन होता है, समय का ट्रांसलेशन ही करता रहता है और जिंदगी का ट्रांसलेशन ही करता है। जीवन का अनुवाद या फिर एक समय का अनुवाद करना ही साहित्यिक का धर्म है, और इसीलिए हम शायद ट्रांसफॉर्म कहते हैं, और किसी समय को, किसी साहित्यिक काल को। ये साहित्यिक की भी ऐसे ही काम होता है कि अनुवाद करता रहता है, लेकिन एक अनुवादक की भूमिका इससे परे होती है। वो एक तरह अपने आप कुछ ज्यादा नहीं लिख सकता, उसके ऊपर एक तलवार लटकी हुई सी रहती है, और उसको दो धार में चलना पड़ता है हर समय, ताकि साहित्यिक की जो संरचना है वो पाठकों के पास ज्यादा नजदीकी से, अंतरंगता से आ सके। तो जब ये सिलसिला हुआ और आपके साहित्यिक का टसल एक रकम से अनुवादक से हुआ, इसको आप कैसे झेले और कैसे इससे निकलकर सामने आए? और फिर सिर्फ मैं उसी सवाल को, पहले सवाल को फिर से दोहराना चाहता हूँ, सिर्फ हलधर ही क्यों? हलधर की कविता में ऐसी क्या बात आपको भा गई जो फिर आप हलधर से मुक्त नहीं हो पाए? एक के बाद एक 3 वॉल्यूम अभी तक प्रकाशित हो चुका है और 4था वॉल्यूम कब अभी निकलने वाला है। जी, आप पूछ रहे हैं, आपका ये सवाल हलधर ही क्यों, उसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर जो ये जवाब जानना चाहते हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर वो उनकी 1-2 की कविताएं उठा के पढ़ लें। एक तो मैं कहूँगा उर्मिला, जो काफ़ी लंबी कविता है, 200 स्टैंजर्स हैं उसमें, और पछर मीन्स द ईयर, ये मेरे फर्स्ट वॉल्यूम में है, उनको पढ़ लें तो आपको ये कविता इतनी भा जाएगी, आप उसमें इतना अंतर तक समा जाएंगे कि आप उससे उभर नहीं पाएंगे। पहले तो मैं भी यही सोचने लग गया कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी है और ये उर्मिला और माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी पढ़ी हैं, और ये जो श्रेय है और ऑथर्स को
उतना हम दे नहीं पाएंगे जितना हलधर को देते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया हुआ है, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन ले रखा है, मैथोलॉजी खूब डीप पढ़ रखा है। मगर पहला तो मैं बहुत आश्चर्य हो गया और उनसे इतनी अच्छी तरह उनका लगाव बढ़ गया, वो इसलिए कि जब मैं जाना कि वो उनके पास शिक्षा इतना नहीं है, he does not have proper education and फिर भी इतना डीप लिखा है। उर्मिला को उन्होंने एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, वो तो बहुत ऑथर्स ने किया है। उसमें उर्मिला में एक कैरेक्टर है कैकेयी, जिसको हम हमेशा मानते हैं कि उनके लिए सब कुछ गड़बड़ हो गया, उनके लिए राम वनवास गए। कैकेयी को भी उन्होंने इतना ऊंचा दर्जा दिया हुआ है, यही चीज मुझे बहुत भा गई कि उनके दिमाग में, हलधर जी के दिमाग में ये कैसे आया कि कैकेयी एक खल चरित्र नहीं है, शी इज नॉट अ विलनेस, शी हैज डन इट फॉर द गुड ऑफ राम। ये उनकी इमेजिनेशन है, उनकी सोच है, पर उन्होंने ये लिखा है कि राम अगर अयोध्या के थ्रोन पे, गद्दी पे बैठ जाते, राज सिंहासन पर बैठ जाते, तो उनकी मृत्यु हो जाती। ऐसा एक अभिशाप था। जो भी 14 साल तक उस राज सिंहासन पर बैठेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये एहसास, ये खबर सिर्फ कैकेयी को थी, और कैकेयी के पास और एक अचकन था कि ये खबर वो किसी को कह नहीं सकते थे, वो बयां नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक ऐसा खेल रचा कि राम, जिनको वो बहुत प्यारा थे, बहुत चाहते थे, उन्होंने उन्हें वनवास भेज दिया, और ये सोचा कि हो सकता है कि उनके जगह भरत का निधन हो जाए, भरत का देहांत हो जाए अगर वो राज सिंहासन में बैठ जाएगा। ऐसा एक अभिशाप था। अब विधि का विधान देखिए, भरत भी उस राज सिंहासन पर बैठा नहीं, और 14 साल राज सिंहासन खाली रहा, और ये जो अभिशाप था टल गया। ये जो सोच है, ये सिर्फ हलधर की अपनी मनगढ़ंत कहानी है, मगर यही है मैथोलॉजी का आजकल का लिखना, और बहुत पुराना लिखना, कि जो जो चीजें दी नहीं गई है उसे कैसे मैथोलॉजी में लाया जाए, और जो चीजें दी गई है उनको कॉन्ट्राडिक्ट ना किया जाए। और भी आगे कहूं उनके बारे में तो बहुत कुछ है। आपने तो सुना होगा, कल बात हो रही थी ऋषि साहब से, सोनेट्स। अब हलधर जी ने कभी पढ़ा तो नहीं है, मगर उन्होंने सोनेट लिखा है। उस सोनेट का नाम है अति। 14 लाइन का सोनेट है, और अपना राइम स्कीम है 4-4-4, 3 क्वार्टर्स और 1 कपलेट। उन्होंने सोनेट भी लिखा है। तो ये सब सोच एक आदमी, मुझे लगता है उनका पूर्व जन्म का ये आशीर्वाद है, और उनको ये एहसास भी है या नहीं मुझे नहीं पता, पर ये उनके अंतर में एक कुछ दिव्य ज्ञान है जिससे वो कर पा रहे हैं। और अगर आप पूछेंगे मैं और किसी और को क्यों नहीं कर पा रहा हूं, अब मेरे को हरजत जी से फुर्सत मिले तो मैं कुछ कर पाऊंगा। हलधर जी ने इतना लिखा है कि उनको खुद को पता नहीं उन्होंने कितना लिखा है, वो खुद नहीं जानते, और कितना लिखा है और कहाँ कहाँ, कभी बोरी में भर रखा है, कहीं गोल करके रख रखा है। तो उनको खत्म करने का इरादा मैंने ले रखा है। अब बाकी को क्या कहाँ समय पाऊं लिखने के लिए। नहीं सर, मेरा मेरा भी मानना यही है कि आप इसी काम में ही जुड़े रहिए। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जब एक अनुवादक अपने साहित्य को चुनता है तो कैसे-कैसे मार्ग में चलता है और क्यों हलदर जी के पास पहुँच जाता है? वही जानना चाहता था। हाँ, आप उर्मिला की बात कर रहे थे। देखिए, सीता इतनी बड़ी चरित्र है रामायण में, और फिर भी हलधर जी ने उर्मिला को महत्व देकर ही उस काव्य की रचना की है। हलधर जी की जो ऐसे में अभी मैं आपसे ये सुनना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस सत्र की शुरुआत हिंदी में इसलिए किया था, क्योंकि जब हम भाषा की विविधता के बारे में बात करते हैं और भाषा की प्रादेशिकता में बारे में बात करते हैं, तो देखिए, भाषा से बड़े परे ज़िंदगी होती है, और भाषा से शायद बहुत ही बड़ा इंसान होता है। इंसान ही भाषा को बनाया है, लेकिन भाषा ने इंसान को अलग-अलग कमरे में बंद कर दिया है अभी। अभी तो भाषा का बाज़ार भी हम ढूँढने लगे हैं, किस किस भाषा में और लिखें तो ज़्यादा लोग तक पहुँचे। तो इस समय में जब एक
कोसली संबलपुरी का लिख रहा है जो कवि, वो किस जिंदगी किस उलझन में शायद जा रहा होगा, और जिसको आप अंग्रेजी के जरिए दूसरे लोगों के पास जब पहुंचा रहे हैं, तो एक बड़ी काम तो कर रहे हैं जिसमें आप जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक दो कविता जो आप कोसली या संबलपुरी में पहले पढ़ें और फिर उसके ट्रांसलेशन अगर हो सके तो हम लोगों को सुनाएं, तो जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं एक कविता, अभी जो कविता हल्दर जी ने पढ़ा इस डॉक्यूमेंट्री में या जो मूवी में, गुलजार जाब का इंट्रोडक्शन वाली मूवी, उसे मैं पढ़ लेता हूं और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देता हूं। मैं सोचता हूं पहले संबलपुरी कोसली वाला पढ़ लूं, फिर इंग्लिश का पढ़ लेता हूं। कवितार ना कवि हलधर के चिट्ठी। चिठी दौछे रे हलधर, दुख भरदर पिलाती टाकर, कविता जन्म कर, चिठी दौछे रे हलधर। समाज के शुद्धि करबू बोले पहले हई जा शौच, और हाथ धरी घिचबू बोले आघो चढ़ दुई पाउच। लोभ लोभनिया संसार के देखी लालस थी नाई मर, चिठी दौछे रे हलधर। सृष्टिर सिघा मनुष्य जायत अंधा हेई हुए धंधे, आपनार सुख सरदार लागी पर के मारुछि कंदे। धर्म करम शरम जे छाड़ी बाट धरे नरकर, चिठी दौछे रे हलधर। दुख के भावबु सुख बोली मार गाली के आशीर्वाद, जाही विष ताही अमृत अच्छे नूर हेई उन्माद। आपे विष खाई अमृत बाट गंगा पछे मुड़े धर, चिठी दौछे रे हलधर। समाज के कर सबकु निजर मधुर वचन कही, जगत जाकर कर गुटे घर से कुटुम अछु रही। पारु पर्यंत कलम गारर समाज सलख कर, चिठी दौछे रे हलधर, चिठी दौछे रे हलधर। This is the poem of 5 stanzas. Let me read it out in English to you, translated. The title is A Letter to Poet Haldhar. Here's a letter to you, O Haldhar. Even like going through pains of labor, creative poetry you should deliver. Here's a letter to you, O Haldhar. If you want to clean the society, first cleanse your own self. If you wish to pull someone higher, first climb a couple of steps. Seeing the attractions of the world, don't let greed put you to bother. Here's a letter to you, O Haldhar. The greatest of all creations, humankind, is now groping in darkness. They are harassing others no end for their own happiness. Dharma, karma, and shame renounced, they are heading to hell further. Here's a letter to you, O Haldhar. Consider sorrow as happiness. A blessing is mother's reproach. Where there is poison, there is also nectar. Passionately go and search. Take poison yourself, but distribute nectar. If needed, carry on your head Ganga river. Here's a letter to you, O Haldhar. Make everyone in society your own by speaking words sweet. Make the whole world a single home. In that family you inhabit. Use your pen with all your might to set the society in order. Here's a letter to you, O Haldhar. Here's a letter to you, O Haldhar. Well, this poem has impressed Gulzarji, the filmmaker, also, because it is very rare that you write a letter to yourself and publish it. This man from a village has written a letter to himself.
what he has tried to do is so many things in the world he wants to change, he wants to bring about change, he wants to tell. As a poet, at least he can write it and tell. So he has done that. हाँ, तो फिर अभी हम इस बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हलधर जी से तो हमारे कनेक्शन अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम जानना चाहेंगे कि आप ऐसे कवि के बारे में बोल रहे हैं, या फिर हम इस सत्र को ऐसे कवि को लेकर चल रहे हैं जो शायद ही किसी स्कूल में गया हो, जो बार-बार अपने बारे में ये कहते हैं कि मैं तो 3 क्लास तक ही पढ़ा हूँ, और वो भी तीसरा क्लास छोड़ दिया हूँ। 2.5 क्लास तक पढ़ी छु वो, मते काना पचरौ छ। ये उनका वर्सन है। और ये भी एक ही कवि है जो बोल सकता है कि भगवान है तो कवि है, और कवि ने ही भगवान को बनाया है। कवि ने ही भगवान को बनाया है, कवि नहीं होता तो भगवान भी नहीं होता। एक ऐसी कवि जो अपने आप को व्यक्त करने में उसके अंदर कोई भी झिझक नहीं है, जो ज़िंदगी के बारे में बोलता है, जो अपने आप के बारे में बोलता है, और जो बोल सकता है कि पहले अपने आप को, जो अभी आप सुना रहे थे, अपने आप को सोच कर फिर दूसरों को बारे में बताएगा। पहले अपने आप को सलग कर, सीधे कर, फिर दूसरे को सीधे करने के लिए बात करेगा। तो फिर ऐसी एक कवि जो अनपढ़ है, गँवार है, हम तो बोल सकते हैं, लेकिन उसके जो विज़न है, उसकी जो दृष्टि है, क्या ये किसी विद्यालय से परे नहीं है? आपको क्या लगता है? आप उनके साथ इतने वक़्त गुज़ारे हैं, उनके गाँव गए हैं, उनके नज़दीक रहे हैं, उनको ताना-पुकारे हैं, तो आपको क्या लगता है? ये हर किसी की बात है या सिर्फ़ हलदर की बस की बात है? नहीं, ये तो मैं समझता हूँ हर किसी की बात नहीं है, बस की बात नहीं है हर किसी की। जैसे मैंने कहा, इनको कुछ जरूर दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। पिछले जन्म पर हम अगर विश्वास रखें तो हो सकता है पिछले जन्म का ज्ञान भी हो, वरना इतना गहरा सोच आया कहाँ से। फिर हर आदमी अपने अंदर एक फिलोसोफर होता है, बहुत कुछ सोचता है, कहता तो कम है। वैसे एक आदमी हलधर है, तो हालांकि वो कम पढ़े हैं या ना के बराबर, ज्ञान उनका बहुत है, और दूसरा उनकी स्मृति या स्मरण शक्ति, मेमोरी इज वेरी वेरी कैपेशियस। अब वो खुद अपना पोएम तो सब याद रखे हैं, आधा से ज्यादा जो रामायण, महाभारत या भागवतम उनको जुबानी याद है। बहुत सारे दूसरे कवि जैसे गंगाधर मेहर, भीमो भोई, उनके बारे में उन्होंने लिखा है, उनकी कविताएं भी उन्हें जुबानी याद है। ये एक करिश्मा कहिए, कुदरती करिश्मा कहिए, मिरेकल बाय गॉड, that what he hears once he remembers. So that also is a storehouse for knowledge. हम जो स्कूल में जाते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, तो हम पढ़ते हैं और रटा लगाते हैं याद रखने के लिए या किसी तरह यूज करने के लिए, वो उनको कुदरती आ जाता है। ये सब तो उनके लिए एक गिफ्ट है जो उन्होंने पूरा दुनिया को बांटने की कोशिश की है। और एक बड़प्पन है उनमें जो उनकी सिंप्लिसिटी है। अब जो आप कह रहे थे, मैं उनके पास गया हूँ, उनके घर में भी रहा हूँ और उन्होंने मेरा चर्चा किया है। वो हमारे घर भी आते हैं और रहते हैं, हमारे पर्सनल ताल्लुकात है। यहाँ पर मुझे उनकी सिंप्लिसिटी भा जाती है। उन्हें कभी इसका गिला शिकवा नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप लोग आश्चर्य होंगे, वो होते तो मुझे कहने नहीं देते, क्योंकि आज वो दुर्भाग्य से नहीं है। उनके पास जो भी पैसा आता है, एक किसी आदमी ने उन्हें दिया है हर महीना 1000 रुपया, बहुत पहले की बात है, वो देता रहा। वो उसको दान में एक स्कूल, फ्री का स्कूल है जिसे कहते हैं हलधर वन विद्यालय, हलधर वन विद्यालय बनाया है, जहाँ पर डेस्टिट्यूट बच्चे, ऑर्फन चिल्ड्रन आर केप्ट एंड फेड एंड रेड, वो उस स्कूल को दे देते हैं। इस तरह जो भी पैसा जहाँ से आए, वो कहते हैं हमें जैसा नून तून खाई के हमें बची जीवा, सॉल्ट एंड समथिंग खाए के दे कैन लिव, नून तून खाई हमें बची जीवा, मोर काना अच्छे। When people are not, more deprived than him, he is very keen to help them out, and he has helped many people. It is very strange. Even during this COVID, Corona year, he was seen distributing masks on the streets, and
he does it not for himself. I don't think he cares for his own self. If we ask him, what happens to you? Why don't you think about your own benefit, your own livelihood? How do you think you will survive? His reply, again, so very, intelligent and selfless reply. He says, a tree in the forest, who goes and waters it? It grows by itself. The trees in the garden, the trees in the park, there are gardeners, there are people who water it and take care of it. Similarly, you all are trees in the garden and park. You need care. I am a tree of the forest. Nature will take care of me. So that is how his thinking is. And it is really, I think myself very lucky to be knowing him, to be in contact with him. अब हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं इतने समय से, हल्दर जी के बारे में, उनको जुड़ने की वक्त आ गया है और वो वाह, हमारे वाह। साथ तकनीकी सौभाग्य से जुड़ गए हैं। क्या करें, बहुत इतनी अच्छी दूरियां के बाद हो रहा है कि हम जुड़ने के लिए लगे हुए हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते हैं। हल्दर जी हमारे साथ आ गए हैं। हल्दर आज्ञा जुहार करू छे, अपन को स्वागत करू छे। हल्दर आज्ञा सुनी पारु छन? हल्दर आज्ञा सुनी पारु छन के? हाँ दादा शुभुचे क्या है? दादा शुभुचे? नहीं, I think he's हल्दर आज्ञा शुभुचे जदि किछि कहून? we can ask him to read out another poem. He can read out another poem. धड़ो बरगछ। हाँ, धड़ो बरगछ। दादा ए आमर गार मसान पदातर पढ़ो तो सुबुचे जदे मुई अच्छा दादा टिके सुबुचे। हम तो अभी भी जुड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। कम से कम आवाज आ जाए उनकी, लेकिन क्या करें, तकनीकी सुविधा असुविधा हमारे बस की बात नहीं होती है कभी-कभी। फिर किसी बार अगर मौका मिलेगा तो हम हल्दर जी को आपके सामने जरूर लाएंगे रविंद्र, किसी वेबिनार के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से। सुरेंद्र जी, अब हम धड़ो बरगद की बात कर रहे हैं, अमरगार मौसन पौधा के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो कविताएं सब हैं, ये जिंदगी को नजदीकी से बयान करता है और हल्दर जी की जीवन ऐसी है कि जिंदगी को वो जितने करीबी से जानते हैं, जितने करीबी से पहचानते हैं, उतनी करीबी से ही लिखते हैं। मतलब उनके लेखन में और जीवन में ऐसे कोई दुविधा नहीं है कि जो अलग-अलग दिशा में जाती है। उनकी जीवन जिस दिशा में जाती है, उनके लेखन की उपलब्धियां भी उसी दिशा में ही जाती है। तो फिर ये जो नज़दीकियाँ एक लेखक की होती है, हर किसी लेखक की तो नहीं होती है, हल्दर जैसी व्यतिक्रमों की ही होती है, लेकिन जिस किसी की भी होती है, उनको अनुवाद करना में और कठिनाई आती है। और जैसे आप बता रहे थे, उसमें भाषा एक माध्यम है, उसमें संस्कृति एक माध्यम है, उसमें परंपरा एक माध्यम है। ये सब माध्यम है, अगर आप उन इन चीज़ों को नहीं पहचानेंगे तो अनुवाद में अंतर आ ही जाता है। अनुवाद में अंतरंगता आ नहीं पाता है। तो फिर इस चीज को आपने कैसे ओवरकम किया? हम तो आपको मैरिनर बुला रहे हैं ना, नाविक। आपने दिशा कैसे दिखाई इन सब चीजों को? एक और दूसरी बात, आपकी जो नया है वो हल्दर जी के पास ही गया। हल्दर जी का ऐसा क्या, उनके जो लाइट हाउस हल्दर जी का था, वो उसमें से ऐसा क्या था जो आपको फिर से एक बार उन्हीं की तरफ ले गया? बताइए उसके बारे में कुछ, और हल्दर जी के निजी जिंदगी के बारे में भी कुछ बताइए हमें। जी। आपने बहुत सारे सवाल कर दिए हैं। ये नैया जो वहां तक खींच गई, उसके बारे में हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। हमारी जिंदगी की डोर कहाँ कब जाएगा वो हम प्लान कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। वो अपने आप चलती है। वो एक ऐसा दौर आया कि उनके साथ मुलाकात हुई और पाला पड़ा और
रिश्ता बढ़ गया और हम उसी दिशा में चलते चले गए। और जैसे मैंने कहा कि उनका रहन सहन, बोली और उनका पूरा सराउंडिंग मेरे को कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। यूं लगा जो वहां जाए तो आदमी को अगर जीना चाहिए तो इसी तरह जीना चाहिए। बाकी सब हम जो जी रहे हैं वो एक नकली जिंदगी है, वो बहुत नेचुरल हिसाब से जी रहे थे। ये चीज हमें बहुत भा गई। अब जब वो लिख रहे हैं, आपका ये पहला सवाल था, वो लिख रहे हैं बहुत उसी उनका एक्सपीरियंस से, उनका एरिया के बारे में लिख रहे हैं। वो भी एक बहुत अच्छा गिफ्ट है उनको। ढड़ो बरगज जो है वो एक बनियन ट्री उनके गांव के मुड़ पर है, उसके ऊपर लिखा है। और अमरगार मसान पोदा, क्रिमेशन ग्राउंड ऑफ देयर विलेज। तो ये जो चीजें हैं उनके आसपास की चीजों के बारे में उन्होंने लिखा है और उसको अपनी मनुष्य की जिंदगी से जोड़ा है उन्होंने। बरगज को उन्होंने जोड़ा है ऐसा कि मनुष्य बरगज की तरह होना चाहिए, खड़ा है, सब कुछ देख रहा है। वो अपने स्टैंजर्स में, अगर मौका मिलेगा तो मैं पढ़ दूं अंग्रेजी में, लिखते जा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है गांव में, मगर ये सब बरगज नहीं के आप नीचे हो रहा है। नहीं आप पढ़ लीजिए वो कविता, हम भी ट्रांसलेशन में ही सुनना चाहेंगे क्योंकि एक समय की साक्षी दे रहा है एक पेड़। तो हम सुनना चाहेंगे आपसे, अगर आपके पास है अभी पढ़ लीजिए। बिल्कुल है, बिल्कुल। मेरे को 1 मिनट का मोहलत दीजिए। मैं ये कह रहा था कि जो डिस्क्रिप्शन गांव के बारे में चल रहा है, गांव का हर चीज, बरगज खड़ा है और देख रहा है, वही है ये कहानी। मैं अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं, इंग्लिश में। Generations have gone by and it stands with its head high, the old banyan tree of the village, to the left of the entrance path. Its canopy vast and widespread, as wide as a threshing ground. The branches extend far out, and like ropes, its roots hang down. Great grandfathers and their fathers, and friends and people known, used to climb the tree and swing on its roots when they were young. Myna, Haral, and other birds flock to it when fruits get ripe. From morn till eve, people sit under, chatting noisily with much hype. In the month of May at midday, when the roads are blistering hot, under this tree travelers rest. Then they go on after their halt. The groom comes to take his bride. From here they start their procession. The bride departs from under here. The wedding comes to conclusion. Here they bring the dead and place it on the bier, anoint it with turmeric and gooseberry. Women return home from here, leaving behind the ritual pottery. As night advances, thieves make entry. From village homes they steal. Under this tree they distribute their loot, money, gold, and utensil. The lover waits for his lass in the twilight of dawn. They promise to elope under the tree of banyan. Now I'm coming to the last stanza. This is hallmark of Haldar poetry. After describing what is happening under the banyan tree, look at the last stanza and the thought of the poet. It sees, it knows, it hears, it finds, but it speaks not a word. It stands like a mute witness with its strong arms spread outward. This is the ending, that we should all be like a mute or bargat banyan tree. We will be able to see everything, we'll hear everything, and we should not start talking what is not needed for us. And this is quite hallmark. If you read, most of the poetry ends with a twist in the last paragraph. ये अभी जब आलोचना हमारी नजदीक आ रहा है खत्म होने की,
हमारी जी ये भी इच्छा है कि आपकी जो काम अभी चल रहा है, काव्यांजलि वॉल्यूम 4, वो जो चल रहा है मतलब खत्म हो गया है और उसके बारे में हमें कुछ बताइए अगर हो सके, तो हम उसे वहीं यहीं भी लोगों को दिखा सकते हैं, जो जी हलधर जी के जी पाठक हैं, उनके सामने ला सकते हैं। आप बताइए काव्यांजलि चतुर्थ वाले जो भाग प्रकाशित होने जी वाले जी हैं। ये तो मैं तो दिखा सकता हूँ। ये आपने काव्यांजलि एक एक जो था, ये काव्यांजलि 2 है। अ, शायद दिख रहा है काव्यांजलि 2। ओके, ये हो गया काव्यांजलि 3। हाँ, ये आ गया काव्यांजलि 3 आपके स्क्रीन पर। तो ये तो कंप्लीट हो गए हैं। अब बहुत खुशी के साथ मैं कहता हूं, मैं ये चाहता था कि हल्धर नाग इसे अनाउंस करे, ऐलान करे कि काव्यांजलि 4, दुर्भाग्य से वो है नहीं। काव्यांजलि 4 भी तैयार है, सिर्फ पब्लिशिंग के लिए बाकी है। अब ये है इसका कवर रिवील, जो पहली बार हमने पब्लिक में दिखाया है। ये है उसका कवर, काव्यांजलि 4, जो कुछ ही समय में आ जाएगी। काम खत्म हो गया है और हर एक काव्यांजलि में कुछ न कुछ कविताएं हैं जो पहली बार छपी हैं। काव्यांजलि 3 तो पूरा पहली बार ही हमारे यहाँ छपा था, कहीं और छपने से पहले। और काव्यांजलि 4, इट इज अ ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी पीपल ऑफ संबलपुर। इसमें 3 लीजेंड्स का बायोग्राफी है, आत्मकथा है। वन इज वीर सुरेंद्र साय, एंड सेकेंड इज संत कवि भीम भोई, एंड थर्ड इज स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। ये इसमें और कुछ नहीं है, ये तीनों का बायोग्राफी है, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। और काव्य जैसे सभी कुछ काव्य में लिखा गया है, ये काव्य के रूप में लिखा गया है। और जैसे हर कवि, हर किताब, मैं थोड़ा एक किताब खोल के दिखा दूं। इसका एक पन्ना कोसली भाषा में है और उसका फेसिंग पन्ना, सामना पन्ना अंग्रेजी में है। वहां से तो दिखेगा नहीं, मगर ऐसा है। तो काव्यांजलि 4 भी ऐसा है। हर एक साइड इवन पेज इज संबलपुरी कोसली एंड द फेसिंग ऑड पेज इज इंग्लिश। तो इसके बारे में और ज्यादा बयान करना किताब ये होने से पहले भी उचित नहीं होगा। हम आशा करते हैं लोगों को पसंद होगी। और हाँ, और एक बात भी मैं कहना चाहूंगा हमारे श्रोताओं से जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये पब्लिश होने से पहले, बिफोर इट गोज टू प्रेस, इफ देर आर सम इंटरेस्टेड पीपल हु वांट टू डू अ प्री रीड करना चाहते हैं, पहले देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और कुछ कैसे लगा हमें फीडबैक देना चाहते हैं, या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कहाँ पर एडिट होना चाहिए, क्या समझ में नहीं आया है, कुछ हुआ है, तो वी विल वेलकम दोज फीडबैक्स। दे कैन राइट टू मी। आई विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट देयर टू put my email ID. They can write to me. I will send them excerpts, and I and Shri Nag, both of us, will welcome their uh, opinion before it goes to press. हाँ, आप बार-बार ज़िक्र कर रहे थे कि हलधर जी की उपस्थिति में अगर ये बात होती तो आपको अच्छा लगती। बहुत अच्छा होता, लेकिन बहुत अच्छा होता है। हमें भी यही खेद है कि हम जुड़ने की कोशिश में तो लगे रहे हैं। और अभी मतलब बार-बार हम जुड़ने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं चलता है और हम कोशिश करते सब रहते कुछ हैं होता है। ज़िंदगी के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन हो जाता है कभी-कभी ऐसा। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा, एक कवि ही है जो नहीं होते हुए भी होता है। एक साखी बनकर एक कवि ही खड़ा हो सकता है। हलधर जी 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 समय की उसी समय को प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ वो होते हुए भी हैं और नहीं होते हुए भी हैं। तो फिर हमें ये दिखने के लिए हलधर जी को और एक मौका हमें तलाशने की ज़रूरत भी है। हम इसी खोज में भी जुड़े हुए हैं। किसी मौके में हो सके तो हलधर जी को इस बहाने रेवेन्शा के ज़रिए आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे ज़रूर। अब सुरेंद्र जी आपसे मतलब अलविदा तो नहीं कह सकते हैं। आपका काम का जो सिलसिला वो तो चलता ही रहेगा।
और ये जो मतलब ये जो वेबिनार वगैरह है उसमें अलविदा की नाम की कोई शब्द ही नहीं होता है। ये एक कंटिन्यूएशन होता है, प्रोसेस चलता रहता है, जी आपका अनुवाद चलता ही रहे और अब आप मतलब आप हलधर जी को और अनुवाद करें, हमारे पास पहुँचाएँ। दुनिया सारे के पाठकों के पास हलधर जी को एक नए रूप से आप उपस्थापन करें। हलधर जी के साथ आपका संपर्क और गहरा हो। इसी के साथ हम ये आलोचना यहीं खत्म करते हैं, लेकिन ये सत्र और थोड़े समय चलेगा। मैं अब अनुरोध करना चाहता हूँ उर्मी जी को, जो अब आएँगे और आगे के बारे में बातचीत करेंगे। Thank you, Gyani Debasis. We have been trying to get a voice recording of Haldar Nag, who is currently watching this whole webcast on YouTube. He is as desperate as us to connect with us. Let us see if we can, but then the time is, we are about to close and we have still not found his recording. I'm very sorry for this, but we'll try our best to bring him online at some other time. Thank you, Surendranath, for trying your best to bring us to face with Haldar through your words and through your experiences with Haldar. We are really grateful to you that you have been able to hold the session entirely on your back, even in the absence of Haldar Nagji. Thank you all. And tomorrow's, we continue with this webinar with Ghazal Dhaliwal and Alka Sani, who will be joining us tomorrow. For the session is titled Translating Identities. We are going to move into a new area of translation altogether. People from different, from a very separate walk of life, from trying to translate as they move from the page to the screen, from print to celluloid. I'm sure our audience will get to learn a lot more about translation as an activity and as an enterprise from tomorrow's session onwards. Thank you, Surendranath Ji. Thank you, Honorable Vice thank you Chancellor, Professor thank Ishan you Paswar. and thank you very Thank much you, and Gyani. Dr. Gyani also thank you. And thank you, Subha, who has been, he's been worried a lot because of not being able to bring Haldar Ji online. Subha, don't worry, we'll manage it some other day. Thank you all. Thank you so much. रेभेन्सा यूनिवर्सिटी रे आज जेन सेमिनार होचे जेन माने उपस्थित छन संख्य मोर जुहार बड़ा खुशी लागला एतकी बेल तक देखुथिले मुई सुनुछे भी जेतकी बुझे सेतकी बुझे बहुत खुशी लागला जेन प्रोग्राम टे करिछन आउ ई प्रोग्राम टा आइबा दिन के सबुदिन लगे आहुरी आके चालू रहबा बोली मुई आशा करूछे।